Assalamualaikum students, hope you all are fine. Today we will start our assignment with our new chapter, which is chapter number 7, and the name of the chapter is simple interest. First I will define you what is interest. When an amount of money is borrowed by the lender, make a certain charges for the use of the amount of money lended. Such a charge is called interest. जब एक amount of money borrow की जाती है, उस amount of money पर कुछ सब चार्ज लगाया जाता है जिसको interest कहा जाता है. ठीक है. प्रिंसिपल, द अमाउंट ऑफ मनी लैंड इज कॉल्ड द प्रिंसिपल. वो अमाउंट जो एज अ मनी बोरो की जाती है उसको प्रिंसिपल कहा जाता है. ठीक है. सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज यूजुअली कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल ओनली. Original amount of money only, the money is said to be lent at simple interest. सिंपल इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल की ओरिजिनल अमाउंट पे कैलकुलेट होता है और उस पर ईयरली चार्ज होता है एज अ इंटरेस्ट. ठीक है. सो द अमाउंट प्रिंसिपल टुगेदर विद द इंटरेस्ट फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम इज कॉल्ड द अमाउंट ऑफ दैट टाइम. प्रिंसिपल इंटरेस्ट के साथ जो कैलकुलेट किया जाता है किसी स्पेसिफाइड टाइम के लिए, उसको अमाउंट कहा जाता है. अमाउंट के लिए आप फॉर्मूला यूज़ करते हैं, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को जब आप कंबाइन करते हैं दैट्स बिकम द अमाउंट. अच्छा, नाउ हियर वी हैव what is simple, the formula for simple interest, finding simple interest. Here what we have to do, we have to write principal, rate of that principal, and number of the year, that is called time, divided by 100. If we denote the principal by p, हम principal को p से, यानी principal के लिए हम p लिखते हैं. rate we denote with r, rate के लिए हम r लिखते हैं. और इसी तरह हम नंबर ऑफ ईयर्स के लिए टी यानी टाइम लिखते हैं. एंड द इंटरेस्ट बाय आई, और इंटरेस्ट के लिए हम आई यूज़ करते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. सो हियर वी मेक द फॉर्मूला पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी डिवाइडेड बाय 100. दैट्स मीन प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100. So now we are coming to our work, which is exercise number 7.1, and for this exercise we have to do question number 1, 2, 3 and 4, and from the second part we have to do questions 7, 8, 9 and 10. In the first part what you have to do, you have to find simple interest. और simple interest के लिए previously मैंने आपको formula बताया, which is principal multiply rate multiply time and divided by 100. So here we are solving first part of this question. So the first part of this question is find the simple interest on rupees 200 for 3 years at 6%. 200 is the principal, rate is 6%, and the year is time, which is 3. Interest we have to find. For finding the interest we will apply a formula, which is principal multiply rate multiply time divided by 100. We will write principal, rate and the number of years, which is time, and we will write 100. Here we will solve this, we will simplify this. Here if simplify possible है तो आप simplify कर दे. After simplify आप क्या कर देंगे, इन numbers को आपस में multiply करेंगे. 2 6 is equals 12, 12 3 is equals 36. So the interest you find is 36 on the principal amount of 200. 200 के principal पर आपको क्या amount मिल रही है interest की, 36. हेयर क्वेश्चन नंबर 2 आपका सेम इसी वे में सॉल्व होगा, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करके बताती हूँ, विच इज़ प्रिंसिपल 2000, रेट ऑफ द दिस इज 3 और 1/2%, टाइम इज 6 एंड इंटरेस्ट वी विल फाइंड. सबसे पहले रेट को हम एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, विच इज़ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. 3 इज इक्वल 6, 6 में 1 आप ऐड करेंगे, विच इज़ 7/2. यहाँ आपने फिर इस तरह लिखना है. इसके फॉर्मूले को लिखने के बाद 2000 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 6, और नीचे आपने 100 जो फॉर्मूला में पुट किया था वो लिखना है. नाउ यू विल अगेन सिंप्लीफाई दिस. आप इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, देन यू विल गेट द आंसर 420. So here you find simple interest for this both question. Question number 4 सेम इसी वे में सॉल्व होगा, which you will do by your own self. आपको क्वेश्चन नंबर 2 and 4 इस पार्ट के खुद से सॉल्व करने हैं. Now we are going to the next question, which is question number 7.
So the question number 7 is find the amount of simple interest on. इन simple interest पर आपको amount find करनी है. सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने का प्रोसेस वही सेम प्रोसेस है. आपने प्रिंसिपल, रेट और टाइम को मल्टीप्लाई किया और इसी तरह आपने डिवाइड किया उसको 100 से. सिंप्लीफाई करने के बाद तमाम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो कि प्रिंसिपल 1600 है उसका आपने इंटरेस्ट फाइंड किया है 216. लास्ट में आपने अमाउंट फाइंड करने के लिए करना है, अमाउंट का फॉर्मूला यूज़ करना है विच इज़ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. प्रिंसिपल आपके पास क्वेश्चन में गिवन है विच इज़ 1600 और आपने इंटरेस्ट की अमाउंट फाइंड की 216. इन दोनों को आपने जब ऐड किया यू विल गेट द आंसर 1816 विच इज़ योर अमाउंट फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. ठीक है स्टूडेंट्स. After doing question number 7, question number 8 and 9 will be done by the students their own self. आपने खुद ये questions करने हैं. Now I am explaining the next question which is question number 10. इसमें आपको प्रिंसिपल की अमाउंट है 18,250. रेट आपके पास है 5%. टाइम आपके पास है 4 होल 1/2 जिसको आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया. सेम इसी प्रोसेस से आपने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करनी है जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चंस में किया था. इनको सिंप्लीफाई करना है. सिंप्लीफाई करने के बाद जिन क्वेश्चंस जो नंबर्स रिमेनिंग हैं उनको मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई करके आपको आंसर देना है. यहाँ आपके पास आंसर में डिनोमिनेटर भी है जो कि स्मॉलेस्ट है तो आपने यहाँ डिवीजन करके इसका आंसर दिया. डिवाइड करने के बाद जब आपके पास इंटरेस्ट का आंसर फाइंड कर चुके हैं आप, so the answer of interest is 4106.25. आपको इसको अमाउंट मालूम करनी है. अमाउंट मालूम करने के लिए आपने क्या करना है, प्रिंसिपल में इस इंटरेस्ट के अमाउंट को ऐड कर देना है. आपने प्रिंसिपल लिखा विच इज़ 18,250 और यहाँ आपने इंटरेस्ट की अमाउंट लिखी 4106.25. आप जब इन दोनों को सम करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 22,356.25. ये आपका अमाउंट का आंसर होगा. स्टूडेंट्स आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस केयरफुली. आपने इसको बहुत गौर से समझा होगा. एंड इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज यू कैन आस्क टू योर टीचर्स. आपने क्वेश्चन नंबर अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ. क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 8 एंड 9 खुद से करना है जो कि आपको एक्सप्लेन किए गए हैं. जिस तरह पार्ट 1 एंड 4 एक्सप्लेन किया गया है, पार्ट 7 और 10 एक्सप्लेन किया गया है, सेम इसी को फॉलो करते हुए आपको बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स.